कह सकते हैं, I mean, I believe that he was the prime minister that country never had. बिल्कुल. इंटरव्यू था तो उसमें Yeah. अरुण जी ने उस समय इंडिकेट किया था कि मोदी कुड बी द प्राइम मिनिस्टर, और वो तो तब तक जब कहीं नाम भी नहीं था उनका. नाम भी नहीं था. बिल्कुल. तो उनके माइंड में उन्होंने देख लिया था कि he has the potential to not just lead the party but also lead the nation. So kind-hearted, who were very spontaneous, were very genuinely very warm and willing to help. There was no pretense. सुन रहे थे, और जब मैं निकल के आया बाहर तो वो मेरे पीछे आए और उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई, कहते वेल डन बत्रा. फिर उन्होंने देखा कि ये इसने मेरा पेन निकाला जॉब से. कहते क्या यार तू इतना कमाता है, क्या 2 रुपए का पेन रखा हुआ है तूने? अच्छा पेन रखा कर. उन्होंने अपनी जेब से मोबला निकाल करके, मोबला का एक अच्छा महंगा पेन उस टाइम पे तो इंडिया में कुछ ऐसे आजकल तो कई जगह मिल जाता है, लेकिन उस समय तो अब्रॉड से आता था, बॉम्बे में, बॉम्बे से कहीं से हम खरीदते थे. उन्होंने मेरे पॉकेट में डाल दिया. One of the things which I noticed in the book, his initial years were that of struggle, because his was also a family which came from Pakistan after the partition. He did not have a very rosy childhood or very rich background. जब वो लोग यहाँ आए पार्टीशन के टाइम पे तो दे लॉस्ट एवरीथिंग. उन्होंने अपनी लाइफ को रीबिल्ड किया. सबसे पहली जिम्मेवारी वाजपेयी साहब ने उनको डिसइन्वेस्टमेंट की दी. एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया फर्स्ट टाइम ऐसे माहौल में जहां पब्लिक सेक्टर को सेक्रोसेंट माना जाता था. अब उसकी बात भी करना है कि आप डिसइन्वेस्ट करेंगे, प्राइवेटाइज करेंगे, बस टैबू. Right. बट वाजपेयी से डिटरमिन्ड थे एंड ही चोज अरुण जी बिकॉज उनको पता था कि ना ये केवल एक काबिल आदमी है, पर इसमें वो क्षमता है कि सबको साथ लेके चल पड़ेगा. Even within BJP, so much opposition. Yes. Hello and welcome to another episode of Kitabi Baatein. I'm your host Abhishek. Friends, today I have a very distinguished guest who has a very long introduction because of his several achievements. And we'll be talking about his latest book on a leading politician of our times. My guest today is Advocate Sumant Batra, a lawyer with 3 decades of global experience in the area of insolvency and bankruptcy. He ranks among the 30 leading international insolvency experts identified by GRR, which also recently confirmed on him the award for outstanding career in insolvency in recognition of his contribution. He is also an international fellow of the American College of Bankruptcy and is the only Indian to have earned this distinction. He is also the only Asian and the youngest one to have served as president of the London-based Insol International. But this is not his full introduction. He is also a prolific author, has authored 9 books, and has contributed to several other books, ranging from topics such as cinema, history, partition, and lot many topics. And today we'll be discussing his latest book on a towering politician, Arun Jaitley ji. Advocate Batra, it's an honor to have you on Kitabi Baatein. My pleasure, Abhishek. Thank you for inviting me to your podcast. Thank you, sir. You wrote a lot of books, and before we talk about this book, which is the topic for today, the life and legacy of Arun Jaitley ji, I wanted to ask, with such a demanding career in law, you managed to win many awards, you managed to write 9 books and contributed to more books, that on very varied topics, from Sanjeev Kumar to partition to Mr. Jaitley. How do you manage to do all of this? Well, I don't know. I mean, it's nothing special that I do, Abhishek. It's just that when I undertake a commitment, any commitment, whether it is writing or whether it is any other area that interests me, I do it very passionately. जैसे जुनून कहते हैं, मैं जुनून के साथ करता हूँ. और फिर उसमें मेरा ये बिलीफ है कि अगर आप जुनून से करते हैं, फुल इंटेग्रिटी से, सिंसेरिटी, कमिटमेंट, ऑनेस्टी से करते हैं, और इवन सेल्फलेसली टू अ लार्ज एक्सटेंट, तो जो कहते हैं ना कि नेचर कंस्पायर्स to make it happen. Right. And I think it opens the ways for me, and I'm so grateful to God that I'm able to do what I often take up as my endeavors. Wonderful. So if we talk about your latest book on Arun Jaitley ji, now I have read a fair bit of political history and on leaders, but I must say this book was an eye opener. You researched it very thoroughly. It's a very detailed book. बहुत सी ऐसी बातें थी जो मुझे भी पता नहीं थी. So like others, I had this image of Jaitley ji, a very sincere politician, a very well respected politician, जिनको हम कहते हैं अजात शत्रु. He had no enemies, which is rare for a political leader in any country for that matter. You did a lot of research, and many aspects of his family life, his personal life, political life came out. One of the things which I noticed in the book, his initial years were that of struggle, because
his was also a family which came from Pakistan after the partition. He did not have a very rosy childhood or very rich background. So how you think his initial days of struggle, especially by his parents, which were affected by the partition, how you think that struggle, that childhood shaped him as a person which he became? Well, Abhishek, I think Arun Jaitley ji, like many of us, your family, not you or I, but our families came to Bharat at the time of partition. Yes. And all of us belong to very illustrious families where we lived. Yes. Arun ji's family lived in Lahore. काफी लोग उनके फैमिली में लॉयर्स थे, इंक्लूडिंग उनके पिताजी यंग लॉयर थे अभी, लेकिन उनके फैमिली में काफ़ी एस्टेब्लिश लॉयर्स थे. उसी तरह से मैं और आप, हमारे इंसेस्टर्स भी बहुत अच्छे इलस्टर्स थे. जब वो लोग यहाँ आए पार्टीशन के टाइम पे, तो दे लॉस्ट एवरीथिंग. उन्होंने अपनी लाइफ को रीबिल्ड किया. वो एक रेजिलियंस का जो रियल मीनिंग है, वो उस समय जो लोग माइग्रेट करके आए थे, उन्होंने विश्व को दिखाया और बताया कि रेजिलियंस और रीबिल्डिंग लाइफ क्या होती है. और उनकी जो स्ट्रगल्स थी वो इसी एक फाउंडेशन पे बेस्ड थी कि हमारे साथ ठीक नहीं हुआ, हम सब पीछे छोड़ के आए हैं, मगर जो हमने अपने उस समय अपनी एक जो हमारा सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि हम हार्ड वर्किंग एज पंजाबीज, और जो उस टाइम पे लार्जली अरुण जीज फैमिलीज पंजाबी ब्राह्मण्स, तो बहुत हार्ड वर्किंग, एंटरप्रेन्योरिंग, बहुत ही कल्चर्ड और इस तरह से मेहनती लोग जब आए, उन्होंने अपनी ज़िंदगी बनाई, उसी में अरुण जी की एक फैमिली भी थी. राइट. जो जैसे मैंने आपको बताया कि अच्छी लॉयर, सक्सेसफुल लॉयर्स थे वहाँ पे, सबको छोड़ के आना पड़ा. उनका जो घर था वो वकीलों वाली हवेली कहा जाता था, इतने मशहूर थे. और पहले होता था वकील डॉक्टर जहाँ फेमस होते थे तो उस जगह का नाम ही उन्हीं के नाम से होता था. राइट. वो आए, सबको छोड़ के ये वन फाइन डे अमृतसर में पहुँचे पार्टीशन से, बिल्कुल अराउंड जब लाहौर वाज बर्निंग. और एकदम तो कुछ महीने लाहौर रहे, क्योंकि जो अरुण जी का ननिहाल था वो वहाँ था जी. तो वहाँ पर आकर के कुछ दिन रहे. अपने बच्ची बहुत छोटी थी, उनकी गोद में थी, अरुण जी की सबसे बड़ी सिस्टर, उनके माता जी की. और फिर उनको संभाला कुछ दिन, अपने पैर वहाँ बसाए, शौक से निकले बाहर, और फिर अपने अपने रास्ते ढूंढे उन्होंने, और वो दिल्ली पहुँचे. और दिल्ली में उनकी फादर की वही स्ट्रगल रही जैसे हमने अपने बड़ों को देखा. राइट. और उन्होंने अपना करियर बनाया, एंड the rest is history. राइट. कहीं ना कहीं देखते हैं उस दौर के लोगों के साथ ही था कि उन्होंने इस को एक चैलेंज की तरह लिया और सब आगे बढ़े. उन्हें आगे बढ़ने की जो एक मन में इच्छा थी वही आगे के जनरेशन्स को पास हुई, क्योंकि अरुण जी का तो जन्म भारत के आज़ाद भारत में हुआ था 1952 में. तो कहीं ना कहीं फैमिली में वो एक कल्चर रहा स्ट्रगल का, आगे बढ़ने का. और जैसा कि आपने बुक में मेंशन किया है कि उस टाइम में भी उनकी मदर की साइड पे भी जो लड़कियां थी उनको भी पढ़ाई पे एम्फसाइज किया जाता था. 1920s 30s की बात है, जब जी बिल्कुल भारत में ओवरऑल लिटरेसी ही बहुत कम थी, तो वुमेन की लिटरेसी तो खैर बहुत ना के बराबर थी, तब भी उनका ये फोकस रहा जी. तो कहीं ना कहीं उस माहौल ने, और जो ये संघर्ष का जब दौर आया, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ऐसे कई एग्जाम्पल रहे हैं कि लोगों ने उस संघर्ष करके जीवन में एक मुकाम हासिल किया. और नो डाउट जेटली जी उनमें से एक डेफिनेटली पर्सन रहे. अब आप एक बात ऐड करना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि अरुण जी आज़ाद भारत में पैदा हुए, पर उन्होंने अपने पेरेंट्स को, मदर को, सबको स्ट्रगल करते देखा, और वो स्ट्रगल्स से उनका कैरेक्टर बिल्ड हुआ. यस. कि रेजिलियंस क्या होती है, स्ट्रगल क्या होती है, रीबिल्ड लाइफ करना क्या होता है, और अपनी पूरी फैमिली को एक सिक्योरिटी देना, राइट, एक लाइवलीहुड देना, एक छत देना क्या होता है. तो उस सब से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर से भरी पर्सनैलिटी उन्होंने एक्वायर करी.
बिल्कुल। और उनके रोल मॉडल उनके पिताजी थे जी। क्योंकि वो साइलेंटली क्वाइट करते थे, और मदर थी क्योंकि वो एजुकेशन में बिलीव करती थी। और जैसे आपने कहा कि उनकी उनके घर में बहुत सारे लोग, लड़कियां भी पढ़ती थी, तो उनको एजुकेशन पे फोकस था, बट कैरेक्टर बिल्डिंग पे बड़ा बिल्कुल फोकस था। बिल्कुल। तो आगे हम देखते हैं कि उनका जो जब पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ था तो वो एक बीजेपी की उन टॉल लीडर्स में से हैं जो आरएसएस से डायरेक्टली नहीं आए थे, जी। जैसा कि कई नेताओं के साथ रहा है। वो एबीवीपी से स्टूडेंट पॉलिटिक्स के टाइम से आए, जब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, पहले श्रीराम कॉलेज, फिर लॉ फैकल्टी में। उनका जो पॉलिटिकल करियर है, पॉलिटिकल लीनिंग्स उस टाइम डेवलप हुई एबीवीपी से। और उसके बाद हम देखा कि इमरजेंसी का दौर था, जयप्रकाश नारायण जी के साथ इन्वॉल्व रहे। तो ये नॉन आरएसएस बैकग्राउंड एक तरह से आप कह सकते हैं, उससे आपको क्या लगता है उनके उस पॉलिटिकल जर्नी पे क्या प्रभाव पड़ा? मुझे लगता नहीं कि प्रभाव पड़ा, और जितना प्रभाव पड़ा उसकी वजह से वो जहाँ पहुँचे, और जितना प्रभाव शायद उन पे उनकी शुरू में बचपन में आरएसएस के साथ एसोसिएशन ना होने की वजह से जो प्रभाव ना पड़ा, उसकी वजह से भी वो वहाँ पहुँचे। जी। उनको दोनों चीज़ों का फायदा हुआ, ये मेरी रीडिंग है। क्योंकि एबीवीपी भी आरएसएस का ही विंग था, एक विंग था। लेकिन वो कॉलेज में आकर के वहाँ जुड़े, और उनका जो आइडियोलॉजिकल शिफ्ट है, एक किस्म से एसोसिएशन होना शुरू हो गया था वहाँ पर, बट डायरेक्ट आरएसएस के मेंबर नहीं थे। तो हालांकि आइडियोलॉजिकल नेशनलिज्म वाला उनकी स्पिरिट आनी शुरू हो गई थी, बट एकदम क्योंकि वो उस ग्राउंडिंग में आगे नहीं आए थे जो आरएसएस की होती है, तो उनका जो पर्सोना था, जिसकी वजह से वो आज भी सबसे ज्यादा माने जाते हैं कि एक जैसे आपने वर्ड यूज किया, अजात शत्रु, एक वेरी ऐसे पॉलिटिशियन जिसको आइडियोलॉजिकल बैरियर्स के बावजूद भी लाइक किया जाता है, जिनके दोस्त जैसे कहते हैं पॉलिटिकल आयल्स में, पार्लियामेंट के लेफ्ट राइट जहां पे भी हो, वो उनको पसंद करते थे। बिल्कुल। और उनका सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, वो एक अपनी उनकी इंडिविजुअल सोच और पर्सनैलिटी थी, बट वो पूरी तरह से बीजेपी में और एबीवीपी में जो है धुले हुए थे। राइट। ये इसमें कोई शक नहीं है, ये बुक में निकल करके आया है कि वो हर मैनिफेस्टो का एजेंडा जो भी बीजेपी का था उसके साथ वो पूरी तरह कमिटेड थे। जी जी बिल्कुल। तो अब जेटली जी की जब बात करते हैं तो इनको एक बहुत अच्छे लॉयर, बहुत अच्छे राजनेता दोनों के तौर पर देखा जाता है। 70s का जो एरा है वो उनका, मैं समझता हूँ कि उनका एक वो रूट रहा एंट्री इनटू बोथ लॉ, जब उन्हें लॉ की पढ़ाई कर रहे थे, एज वेल एज पॉलिटिक्स। तो वो दौर निस्संदेह संघर्ष का रहा, इमरजेंसी की वजह से भी, और उन्हें बहुत सा टाइम डिवोट करा अपनी पढ़ाई के लिए, प्लस अपनी, क्योंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव रहे, बट उसने एक तरह से उनकी फाउंडेशन जो है वो तैयार करी। तो उस स्पेसिफिकली 70s के दौर के बारे में अगर आप कुछ बताएं, क्या क्या वो घटनाएं रहीं जिन्होंने जेटली जी को शेप अप करा, बोथ एज अ सक्सेसफुल लॉयर एंड अ पॉलिटिशियन? जी, नहीं, एस पॉलिटिक्स में जब खन्ना साहब उनको लेकर के आए, जो के उस समय प्रेसिडेंट थे, तो उनके सीनियर थे शायद एसआरसीसी में और सब, तो वो उनको लेकर के आए। उन्होंने देखा बहुत से डिबेटर थे, और उस समय बहुत कम लोग थे जो इंग्लिश इतनी फ्लुएंसी से और इतनी अच्छी वैकेबलरी के साथ बोल सकते थे, और स्पीकर बहुत अच्छे थे, और ऊपर से इंग्लिश पे कमांड थी, हिंदी पे भी थी। तो वो डिबेटर थे, और उनको सुनने वाले दे वर इन ऑ ऑफ हिम। जी। और तो खन्ना साहब ने कहा कि मुझे ऐसे लड़के चाहिए पॉलिटिक्स में, तो उन्होंने परसुएड किया और उनको पॉलिटिक्स में, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में खींचा। और फिर उनका आई थिंक जो सबसे बड़ा टर्न आया वो है दूसरों की पॉलिटिक्स में। जी। जहाँ पर उनको प्रेसिडेंट की टिकट के लिए खन्ना साहब ने उस समय सजेस्ट किया, मगर आरएसएस में उस समय थोड़ी सी हेजिटेशन थी कि जो ऐसे किसी को प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट करना जो उनके साथ ग्रास रूट से नहीं आया है, क्योंकि पिछले इलेक्शन में जो उनकी टिकट पे लड़ा आरएसएस के सपोर्ट से, वो छोड़ करके एनएसयूआई ज्वाइन कर लिया। तो उन्होंने कहा कि यही होता है, जो हमारे साथ शुरू से जुड़ा नहीं है तो उसकी लॉयल्टी शिफ्ट हो सकती है, और जो हमारे साथ शुरू से जुड़ा है वो इतना इंग्रेन्ड है हमारे सिस्टम में, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और वो बीजेपी का मानने की बात है, बीजेपी के लोग छोड़ने वाले बहुत कम रहे हैं, जो आया है वो छोड़ गया, लेकिन
जो शुरू से साथ है, हम बहुत कम ऐसे नाम होंगे। तो उनको वाइस प्रेसिडेंट का और उन्होंने बड़े ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया अरुण जी ने, और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा और बहुत अच्छी मेजोरिटी से जीते। उन्होंने कोई ग्रीवेंस नहीं रखी। उस समय एनएसयूआई से कांग्रेस ने उनको बहुत लेवर किया कि हम कांग्रेस की टिकट देते हैं, पर वहां उनका सबसे पहला इम्तिहान था कि मैं आइडियोलॉजिकली बंध चुका हूं, मैं लॉयल्टी मेरी एबीवीपी के साथ है, और इसलिए नो वे, चाहे मैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़के जीत सकता हूं कांग्रेस से, मगर मैं नहीं करूंगा। और वो जीते। और उसके बाद जो सबसे बड़ा, आपके सवाल का अब जवाब दे रहा हूं, दो चीजें जिनका जो लाइफ चेंजर थे। तो 200 में उस समय जो इलेक्शन होता था, वो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होता था। जी जी। वो जो काउंसिल होती थी वो इलेक्ट करती थी, काउंसिल के मेंबर्स इलेक्ट होते थे डायरेक्ट। तो इन्होंने 2-3 लोगों ने मिलकर, अरुण जी फोरफ्रंट में थे, ये फाइट किया कि डेमोक्रेटिक इलेक्ट होना चाहिए। और उस समय कुछ लोगों को रेस्ट्रिकेट कर दिया गया। अरुण जी उसमें रेस्ट्रिकेटेड नहीं थे, बट उनके सीनियर्स को। तो अरुण जी ने डीयू की हिस्ट्री में लॉन्गेस्ट स्ट्राइक एवर बाय द स्टूडेंट्स लीड करी, और प्रेशर में आकर के अल्टीमेटली एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज करना पड़ा इलेक्टोरल प्रोसेस। So that was his biggest contribution, right, and that obviously motivated him कि you can be a change maker, right. और उसके बाद तो आप जानते हैं कि इमरजेंसी डिक्लेयर हुई। इमरजेंसी डिक्लेयर होते ही जिस दिन, इनफैक्ट उससे पहले सत्याग्रह मूवमेंट की आपको पता है कि डिसाइड हो गया था कि जयप्रकाश जी के यहाँ मीटिंग, नारायण जी के यहाँ मीटिंग हुई थी, अरुण जी भी वहाँ पे थे कि सत्याग्रह मूवमेंट कल से शुरू करेंगे, और उसी रात डिक्लेयर हो गई थी इमरजेंसी। सारे अरेस्ट होने लगे, तो अरुण जी को भी अरेस्ट किया गया। मैंने उसमें विस्तार में लिखा है बुक में, दैट हाउ ही गॉट अरेस्टेड, किस तरह से वो डीयू में पहुंचे, उन्होंने स्पीच दी, और कैसे उनको वहाँ अरेस्ट कर लिया गया, और जो वो फिर इतने महीनों, लगभग 1.5-2 साल वहाँ रहे जो जेल में जी। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑन हिज लाइफ एज वेल। सो इन 2-3 एपिसोड्स ने उनको जो है एक पॉलिटिकल क्राफ्ट्समैनशिप सिखाई, जो उन्होंने बाद में, जैसे ही वो जेल से रिहा हुए, तो उन्होंने अपना मन बना लिया कि मेरा लाइफ में करियर पॉलिटिक्स होगा। और यहाँ पर आपने इसे बुक में जिक्र करा था कि उन्होंने कई जो इनके फ्रेंड्स बने, इनफैक्ट आज के जो भाजपा के कई बड़े नेता हैं जी, वो भी उस वक्त उनके संपर्क में थे, यंग लीडर्स थे उनकी तरफ। जी बिल्कुल। इसके साथ साथ बहुत से वो भी लोग रहे जो पॉलिटिकली बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, आइडियोलॉजिकली ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, लेकिन जैसा उनकी खूबी थी, जैसे मैंने कहा अजात शत्रु, तो उनके कोई दुश्मन नहीं थे। इवन पॉलिटिकली जब डाइवर्स व्यूज वालों के साथ भी वो एक रिलेशंस बनाकर रखते थे, जैसे हम कहते हैं कि रेयरिटी ही है स्पेशली आज के पॉलिटिकल सिनेरियो में। तो ये 70s का वो डेकेड था। उसके बाद जो बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट आता है, आई थिंक 77 में शायद वो इलेक्शन नहीं लड़ पाए थे बिकॉज ऑफ एज का प्रॉब्लम। 1-1.5 साल छोटे थे। तो 80s में जब भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बना 82 में, वो उनके करियर को एक नई दिशा हम देखते हैं कि देते हैं। उसके बाद और जैसे मूवमेंट्स आई, क्योंकि पॉलिटिकल अपहीवल का दौर रहा था 80s में, इंदिरा गांधी जी का मर्डर, राइट्स, उसके बाद राम जन्मभूमि आंदोलन, और यहाँ पे आपने जिक्र करा कि कैसे वो ड्राफ्ट बनाने में भी अपना लीगल एक्यूमेन ने शो करा। तो 80s ने अगेन हम देखते हैं उसको सीमेंट करा, और 90s में जब पहली बार वो मिनिस्टर बने। तो ये 80s वाले ट्रांजिशन को आप कैसे देखते हैं, जिससे आगे अल्टीमेटली वो मिनिस्टर भी बने? उस डेकेड को आप कैसे देखते हैं? आई थिंक 1980s में जो अरुण जी का सबसे बड़ा, ये मेरी अपनी रिसर्च कहती है कि उन्होंने जो चॉइस अपनी बनाई वो ये कि मुझे एक अगर सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बनना है जिससे मैं कंट्रीब्यूट कुछ कर सकूं मीनिंगफुल, तो मुझे उसके लिए एक सक्सेसफुल इंटेलेक्चुअल होना भी जरूरी है। बिल्कुल। और ये इस कंट्री की हिस्ट्री कहती है कि लॉयर्स ऑलवेज have had the opportunity to contribute to nation building in one way or the other. And amongst the intellectuals, they obviously have been at the forefront in making contributions to the nation building, as I mentioned, in various avatars. So, उन्होंने उस समय ये सोचा कि इसलिए मुझे अपना करियर पे भी फोकस करना चाहिए। तो 80
82 में जब उनको सरकार बन गई, 77 में इलेक्शन हुआ, तो इलेक्शन में उन्होंने पूरा एक्टिवली कैंपेन किया एज अ स्टूडेंट लीडर। राइट। उनको टिकट जो देना चाहते थे वो संजय गांधी जी के खिलाफ लड़ाने की बात हो रही थी, बट जैसे आपने बताया कि वो एलिजिबल नहीं थे, 25 ईयर्स से थोड़े छोटे थे, तो उन्होंने अपनी लॉ कंप्लीट करी और उसके बाद अपने पिताजी का चेंबर ज्वाइन किया 30,000 में, फिर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अपना करियर बनाया और वो इतने प्रोमिनेंट हो गए, इतने सक्सेसफुल इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हुए। उनका वो तो एक नेचुरल स्किल था, इंटेलिजेंस थी, डिबेटर थे, लैंग्वेज पे फ्लोर था, फ्लेयर था और पर्सनैलिटी थी, मेहनती थे, तो हर तरह से उन्होंने 5-7-8 साल में अपने लिए अपना बड़ा अच्छा सी जगह बना ली थी कोर्ट्स में। और फिर उस दौरान जब 80s में उनका फोकस हो रहा था तो वो एक जाने माने वकील बन चुके थे। साथ साथ वो दिल्ली पे ज़्यादा काम कर रहे थे उस समय, क्योंकि दिल्ली की जिम्मेवारी उनको दी गई थी। दिल्ली तब स्टेट नहीं बना था, तो उस तरह से वो प्रोमिनेंटली जैसे आज खबर में रहता है अखबारों के, वो नहीं रहता था राइट। चर्चा में। मगर तब जब वीपी सिंह जी को राजीव गांधी जी ने कैबिनेट से रिजाइन करने के लिए बोला, वो आपको पता है फेयरफैक्स वाला वो सारा इशू बना था, तो उस समय वीपी सिंह जी पे इंक्वायरी शुरू हुई थी एक, तो कि उन्होंने एक डिटेक्टिव एजेंसी हायर करी थी जैसे है, तो उस समय अरुण जी ने और राम जेठमलानी जी ने दोनों ने मिलकर के वीपी सिंह को एडवाइस किया और वीपी सिंह इतने इम्प्रेस थे उनसे कि उनकी जो एडवाइस, क्वालिटी ऑफ एडवाइस, क्लैरिटी ऑफ थॉट से, कि जैसे ही जब उसके बाद वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इनको एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनाया और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बनाया, और वो एक यंगेस्ट एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बने। फिर एक सीनियर एडवोकेट भी साथ साथ डेजिग्नेट हुए, उसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मगर उसी समय जब वीपी सिंह जी ये राम जन्मभूमि का सोल्यूशन ढूंढ रहे थे, ऑर्डिनेंस निकाला, वो भी अरुण जी की लैंग्वेज थी, सारी टेक्स्ट ड्राफ्ट किया हुआ, उस समय बैठ करके इतनी मीटिंग्स में चर्चा हुई। तो वो जो फेज था उसमें उनका जो इंटेलेक्चुअल कैलिबर और पॉलिटिकल एक्यूमेन दोनों एक बारी मिलने लगा, राइट। और वो निखर के आए एक कंप्लीट पॉलिटिशियन विद इंटेलेक्ट and political acumen and the ability to solve problems and engage at the highest level and win the confidence at the highest level politicians. बिल्कुल। तो 80s हम देखते हैं उन्होंने सीमेंट करा उनको बोथ एज अ पॉलिटिशियन एज वेल एज आप कह सकते लॉयर। और जब एक पॉलिटिशियन के तौर पर इनकी एक बार, जैसा मैंने कहा कि वो सभी के साथ रिलेशन बना सकते थे, और चाहे जहाँ पॉलिटिकली एकदम डाइवर्स व्यूज भी आपके रहे हो, और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन में उनका योगदान रहा है। तो एक तरफ उनका लीगल एक्यूमेन आता है, जैसा आपने बुक में बताया कि आर्टिकल 370 हटाने के लिए भी जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था उसमें उनकी भूमिका थी, आईबीसी जीएसटी सभी में उनका रोल रहा। तो ये उनका लीगल एक्यूमेन था। एक जो पॉलिटिकल एक्यूमेन एंड द एबिलिटी टू टेक पीपल अलोंग, वो आपके हिसाब से कितना क्रिटिकल रहा बहुत से लेजिस्लेशंस को पास करवाने में? और उसकी जो वो आई थिंक उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी जी, और इसलिए इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उन पे बहुत रिलाई करते थे। ना ही सिर्फ उनकी मिनिस्ट्री फाइनेंस से रिलेटेड बिल्स या डिफेंस, बट बाकी मिनिस्ट्रीज के जो बिल्स होते थे वो भी वो उन मिनिस्टर्स को कहते थे कि भाई अरुण जी से विमर्श कर लें। और अरुण जी के साथ विमर्श करने का सिर्फ ये तात्पर्य नहीं होता था कि आप बिल पे एक इंसाइट ले लें या उसको कैसे प्रेजेंट करना है वो गाइडेंस ले लें, वो तो होता ही था कि आप उसको पास कैसे कराएंगे, वो भी स्ट्रेटेजाइज उनसे सीखिए, क्योंकि वो 4 फोन करके अपने मित्रों को बता सकते थे कैसे थे, और ये नहीं है कि वो उनको कहते थे यार कर दो पास, वो उनको कन्विंस करते थे कि ये हमारा इस पे गोल है, और कोई उनके जो कंसर्न्स हैं वो सुनते थे ऑपोजिशन के, और वो कहते थे कि ये कंसर्न्स हम एड्रेस करने को तैयार हैं, जेन्युइनली ये हम बहस करने को तैयार हैं, हम इस पे मानते नहीं पर बहस करेंगे, और इस पे हम आप कितनी भी चर्चा कर लें पर वो हम नहीं मानेंगे कि, और सिर्फ ये वजह है। तो वो उनका रूल होता था, ईदर यू परसुएड मी और गेट परसुएडेड, पर ये नहीं होता था कि माय वे और हाईवे, राइट। उनका ये एटीट्यूड नहीं था, और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि उनका एक फंडामेंटल ट्रेट था कि जब वो वाजपेयी साहब के यहाँ भी मिनिस्टर बने, पहली बीजेपी की जो टर्म रही 3 टर्म्स में, वो तीसरी वाले में जो छोटी छोटी थी 13 दिन का 13 महीने का या जैसे भी था, उसके बाद फिर वो पूरी 5 ईयर टर्म जो 2004 में खत्म हुई, उसमें वो उन्होंने बड़े बड़े पोर्टफोलियो होल्ड किए। डिसइन्वेस्टमेंट सबसे पहले जिम्मेवारी वाजपेयी साहब ने उनको डिसइन्वेस्टमेंट की दी,
एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया फर्स्ट टाइम। ऐसे माहौल में जहां पब्लिक सेक्टर को सेक्रोसेंट माना जाता था, अब उसकी बात भी करना है कि आप डिसइन्वेस्ट करेंगे, प्राइवेटाइज करेंगे, वाज टैबू। राइट। बट वाजपेयी से डिटरमिन्ड थे एंड ही चोज अरुण जी, बिकॉज उनको पता था कि ना ये केवल एक काबिल आदमी है, पर इसमें वो क्षमता है कि सबको साथ लेके चल पड़ेगा। इवन विद इन बीजेपी सो मच ऑपोजिशन। यस। और कुछ ही दिन में उन्होंने ऐसे रिजल्ट किए कि उन्होंने डिस्प्लेसमेंट डिपार्टमेंट को मिनिस्टर ऑफ स्टेट पूरा कैबिनेट बना दिया। और फिर उसके बाद राम जेठमलानी जी जब रिजाइन किया लॉ मिनिस्टर, तो उनको लॉ का पोर्टफोलियो मिला। जब ये आपके जो डीएमके के मिनिस्टर हैं, नाम मुझे, जो अरेस्ट हो गए थे, उसमें कॉमर्स मिनिस्टर थे, उनको जयललिता ने अरेस्ट किया था, मुरस्सी मरन, आई एम सॉरी। तो वो कॉमर्स मिनिस्टर उनको रिजाइन करना पड़ा क्योंकि वो अरेस्ट हो गए थे, 24 घंटे से ज़्यादा जेल में रहे। तो अरुण जी को वो पोर्टफोलियो जी। उस समय उन्होंने WTO में चाहे लॉ मिनिस्टर एज ए, उसमें उस समय इन्होंने कंपटीशन लॉ पास कराया। प्रणब मुखर्जी कमेटी चेयर कर रहे थे पार्लियामेंट की। उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया कि अरुण जी ने जिस तरह से इस तरह से किया वो रिकॉर्ड पे है पार्लियामेंट्री डिबेट्स के। और उसी तरह से एज डिसइन्वेस्टमेंट, इतनी डिसइन्वेस्टमेंट हुई उस टाइम पे, बीजेपी को साथ लेकर के, सारे ऑपोजिशन को, इतने हार्ड कोर को साथ लेकर के उन्होंने चला। तो उनका वो जो स्टीक था, उनकी पर्सनैलिटी का सबको साथ लेके चलने वाला, वो तो वहीं से आया था। और यहाँ तो आप जानते हैं, चाहे वो GST है, चाहे IBC है, चाहे वो ट्रिपल तलाक है, चाहे वो कितने भी एरियाज हैं, चाहे वो उनकी मिनिस्टर के बाहर के, उन्होंने ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अपनी दिखाई कि ना केवल मेरे में एक इंटेलेक्ट है एक बिल को कल्टिवेट करने की, बट उसको एक पार्लियामेंट में डिबेट करके बाहर निकालने के लिए वो भी उसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ। बिल्कुल। तो IBC, क्योंकि IBC तो आपका अपना एक स्पेशलाइजेशन एरिया है, IBC या GST की बात हम डिटेल में करेंगे। उससे पहले जानना चाहता हूँ, जैसा आपने बताया कि वाजपेयी जी के टाइम उन्होंने इतने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे, डिसइन्वेस्टमेंट, WTO नेगोशिएशंस, एक उसके साथ साथ जो अरुण जी के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, वो होता है इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट। तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत से इलेक्शंस की वही स्ट्रेटेजी देखते थे। तो हाउ डू यू सी हिम एज एन इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट? लोग उनके बारे में कहते हैं कि although he could not win election for himself, but he could win election for anybody else. और क्योंकि वो मासेस की पल्स जानते थे जी। उन्होंने एक ही इलेक्शन लड़ा अमृतसर में 2014 में, जो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं जीत पाए। उसके कई फैक्टर्स हैं। आई डोंट थिंक इट हैड एनीथिंग टू डू विद अरुण जी's लैक ऑफ पॉपुलैरिटी, मगर वो एक मास्टर स्ट्रेटजिस्ट थे। और मैं मानता हूं कि अगर चाणक्य किसी को माना जाता है, लोग अहमद पटेल को चाणक्य कहते हैं, अमित शाह जी को भी कहते हैं, और डिजर्व करते हैं दोनों, क्योंकि अपने अपने वे से वो चाणक्य हैं। और पर मेरे हिसाब से अरुण जी भी एक शांत पीछे रह करके स्ट्रेटेजिस्ट, उनकी चाणक्य नीति कुछ और ही लेवल की थी। और आई थिंक उसकी उनकी चाणक्य नीति को मैं इसलिए थोड़ा सा हटके कहता हूँ कि वो क्योंकि ना सिर्फ जानते थे कि मासेस को क्या चाहिए जी, उसमें और लोगों के भी इनपुट होते थे, मगर खास करके उन पे बात कम्युनिकेट कैसे करनी है, उसके सबसे बड़े मास्टर स्ट्रेटजिस्ट थे। क्योंकि कोर्ट में आर्ग्यू करते थे, उनको पता है कि जज को कैसे कन्विंस करना है। ही वाज अ मास्टर स्टोरी टेलर, राइट। और ऐसी चीज जो आपकी IQ और EQ दोनों को अपील करे। तो इस करके जब वो एक स्ट्रेटजी बनाते थे, उसमें यही नहीं होता था कि कौन वहां से लड़ना चाहिए, हमारा पॉलिटिकल नैरेटिव क्या होना चाहिए, राइट, हमारा फ्रंट फुट क्या होना चाहिए, कहाँ हम पीछे रहेंगे, कहाँ हम आगे रहेंगे। वो एक जो पैकेजिंग थी ना, वो उसमें मास्टर थे। बिल्कुल। अरुण जो आज अगर आप देखें, अमित शाह जी सबसे बड़े चाणक्य माने जाते हैं, और उनको इलेक्शन जीतना कोई जानता है तो अमित शाह जी बिल्कुल जानते हैं। उन्होंने पार्टी को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। मगर अरुण जी का जो एक अलग स्थान है भारत की पॉलिटिक्स में, क्योंकि वो एक आगे ना रह करके पीछे रह करके ये सब कुछ करते थे, राइट। क्योंकि वो पॉलिटिकली विजिबिलिटी में इतना बिलीव नहीं करते थे अपनी, वो बिलीव करते थे रिजल्ट्स में और कैसे इसको इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करें। तो ही वाज अ बैकरूम स्ट्रेटजिस्ट, बट ऑल्सो विद अ गुड अमाउंट ऑफ प्लेजेंट अमाउंट ऑफ फ्रंट फेस। क्योंकि जितने भी अगर आप देख लें बीजेपी की 80 से ही, अगर आप उनके स्पोक्स पर्सन देखें तो
2014 तक तो अरुण जी ही फोरफ्रंट में बिल्कुल थे। बिल्कुल अब उसके बाद इतने सीनियर हो गए थे और लोगों को एनकरेज किया गया। जी। 2014 से पहले भी निर्मला सीतारामन जी, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान जी, ऐसे ऐसे लोगों को मौका मिल गया था जी। अपना फेस बनाने का, लेकिन अरुण जी का ये सबसे बड़ा स्ट्रेंथ था। तो जब आपने जैसे निर्मला सीतारमण जी की, पीयूष गोयल जी की बात करी, तो ये भी कहते हैं कि उनको फोरफ्रंट पे लाने में अरुण जेटली जी का बहुत बड़ा योगदान था। तो उन्होंने ना सिर्फ नए लोगों को मौका दिया, बल्कि जो कहा जाता है कि वो जो दिल्ली का लिबरल एलीट है उसके साथ बहुत अच्छे टर्म्स थे। तो आज की लैंग्वेज में बोले तो शायद आप कह सकते हैं वो भाजपा के वो खान मार्केट गैंग के मेंबर थे, क्योंकि वो सभी के साथ जैसे बना के चलते थे। उस एस्पेक्ट से आपको लगता है कि कभी पार्टी के साथ फ्रिक्शन रही होगी, क्योंकि वो ओल्ड गार्ड जो था उस टाइम, वाजपेयी जी, अडवाणी जी और सीनियर लीडर, उन्हें यंग लोगों को मौका दिया, उन्होंने दिल्ली के लिबरल एलीट के साथ भी एक टर्म्स बना के रखे, क्योंकि उनके खुद के निजी जीवन में शौक ऐसे थे कि बहुत बड़े फूडी थे और इस तरह के सोशलाइट से थे। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये संभावना रही होगी कि शायद भाजपा के नेताओं या आरएसएस के साथ उनकी एक फ्रिक्शन रही हो कभी? मैं अवश्य कह नहीं सकता, बिकॉज आई एम नॉट अ पॉलिटिकल एनालिस्ट इन दैट सेंस। तो मैं बियॉन्ड अरुण जी बात नहीं करता, बिकॉज अरुण जी पे तो मैंने बहुत रिसर्च किया है और आई एम नॉट अ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर, लेकिन बट आई हैव कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। तो मैं पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, तो इसलिए अपने लिमिटेड एक्सपीरियंस से इस बात पे बोलूँगा कि जितना मैंने अरुण जी को स्टडी किया है, अरुण जी वॉज अ बेनिफिशियरी ऑफ द ट्रांजिशन फ्रॉम द ओल्ड गार्ड टू द न्यू गार्ड। They were the bridge between the old जनसंघ and the new BJP, the modern जनसंघ जिसे कहा जा सकता है। तो यंग टर्क बने अरुण जी, वेंकैया नायडू जी, प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, ये जो आप कर्नाटका वाले अनंत कुमार, अनंत कुमार, हाँ जी, ठीक है, ये 5-6 लोग यंग टर्क जी थे। जी तो जब उनको ये रिकॉग्निशन थी कि हम उस टाइम पे हमारे को यंग को इनकरेज किया गया, राइट, तो आई थिंक ऑल ऑफ देम फेल्ट रिस्पॉन्सिबल कि हम भी आगे यंग लोगों को इनकरेज करें। तो जहां तक इस बात का सवाल है कि उस समय निर्मला सीतारामन जी को मिनिस्टर ऑफ स्टेट रिकमेंड किया, पीयूष गोयल जी को किया, धर्मेंद्र प्रधान जी को किया, ये ऑन रिकॉर्ड है कि वो मोदी जी को अरुण जी ने कहा कि हमें इन्हें मौका देना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल पॉलिटिक्स का अरुण जी को ज़्यादा समझते थे उस टाइम पे। मोदी जी गुजरात और नेशनल पॉलिटिक्स समझते थे ज़रूर, बट सेंटर की जो एक पॉलिटिक्स होती है कि गवर्नेंस में कैसे सेंटर में करना है, वो अरुण जी पे निर्भर, अपने आप को काफ़ी निर्भर मानते थे, तो उनकी एडवाइस को रिस्पेक्ट करते थे। और अरुण जी भी अब एक रिस्पॉन्सिबल वे से, जहाँ तक मुझे लगता है, एडवाइस देते थे। तो वो तो इस एजेंडा से और इस पर्पज से यंग को एनकरेज किया कि एक ट्रांजिशन सक्सेशन होनी चाहिए। जहां तक फ्रिक्शन की बात है, मुझे लगता है किसी भी फील्ड में, सिर्फ पॉलिटिक्स में ही नहीं, आप चाहे फैमिली बिजनेसेस में देख लीजिए, आप चाहे लीगल प्रोफेशन में देख लीजिए, आप किसी भी जगह देखें जहाँ पे ट्रांजिशन होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, चाहे वो विद इन फैमिली हो या आउटसाइड हो, तो वो एक ट्रांजिशनल शिफ्ट में एक जो टेंशन्स होती हैं वो होती हैं। These are temporary because somebody is losing power, somebody is gaining. There are differences of opinion. And then third, people outside amplify it, क्योंकि उनको तो मसाला चाहिए होता है, तो एम्पलीफाई हो जाता है। तो उस तरह से ये एक नॉर्मल फेज होता है जब ट्रांजिशन होती है। तो उतनी टेंशन जितनी उस फेज में होनी चाहिए उतनी होती है, वो हुई होगी। जहाँ तक मुझे लगता है, आप जानते ही हैं, जब मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर का नाम क्लियर कमेंट किया गया, तो ऑब्वियसली कुछ लोग जो एस्पिरेंट्स थे तो उनको बुरा लगा होगा, तो जो उन्होंने सारी जिंदगी मेहनत करी है, पर उस समय जो विनेबिलिटी देखी जाती है ना पार्टी वो के उन्हीं के साथ, तो वो मोदी जी के साथ विनेबिलिटी करेक्ट फैक्टर था बहुत पावरफुल। इसलिए अरुण जी ने ही पुट हिज फुट डाउन कि ही इज द मोस्ट विनेबल कैंडिडेट, ओनली ही कैन गेट अस बैक टू पावर एंड formidably and perhaps even singularly. Right. जी। और वही हम देखते हैं कि 14 में जैसे और वो हुआ। तो आपने मोदी जी के साथ जैसे उनके संबंध, आपने पूरा एक चैप्टर लिखा है, तो उसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि वो काफी दशकों से उनकी और मोदी जी की दोस्ती थी। और आगे हम देखते हैं कि जब मोदी सरकार बनी 14 में, तो उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई एज फाइनेंस मिनिस्टर। तो कैसा उनका रिलेशन रहा मोदी जी के साथ, और कैसे उसने उनको और भाजपा को आगे बढ़ाया? जी, तो मेरी रिसर्च जो शो करती है, हालांकि this book is not about their relationship, there is, as you said, कि a chapter in that, but that's a very important chapter, right? और वो ये है कि अरुण जी की और मोदी जी की, ऑब्वियसली अब बीजेपी में थे तो
मुलाकात भी होती थी, जान पहचान भी होगी, लेकिन राम जन्मभूमि मूवमेंट के टाइम पे उनका आपस में संपर्क बढ़ा, क्योंकि मोदी जी जो है अडवाणी जी की रथ यात्रा का पूरा प्लान कर रहे थे गुजरात में, और अरुण जी यहाँ पर स्पोक्स पर्सन होते थे, रोज ब्रीफिंग करते थे मीडिया को, तो मोदी जी उनको बताते थे कि आज क्या होगा, कैसे हुआ और आज क्या हुआ, आगे क्या होगा। तो और अरुण जी से उनका वहाँ पे भेंट हुई, और वो भेंट एक किस्म से मित्रता की तरफ बढ़ती गई। और जब वो संपर्क में रहे, उसके बाद जब मोदी साहब गुजरात के पॉलिटिक्स से बाहर आकर के नेशनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुए, आप पूरी हिस्ट्री मैंने लिखी है कि उसमें केशुभाई पटेल और सबका जैसे इशू हुआ था, तो मोदी जी को कहा गया था कि आप और स्टेट्स को संभालें, और फिर उनको बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी दी नेशनल सेक्रेटरी अपॉइंट करके। तो उस समय वो दिल्ली में एंकर हुए जी, और दिल्ली में एंकर हुए तो फिर अरुण जी के साथ उनकी भेंट मित्रता में बदली, और घर आना जाना शुरू हुआ, और उन एक दूसरे से खुद करीब से जानना शुरू हुआ। अरुण जी मोदी जी से बहुत कुछ सीखते थे जी, और मोदी जी अरुण जी से सीखते थे कि सेंटर की पॉलिटिक्स और बाकी जगह कैसे है, क्योंकि अरुण जी तब तक बाकी और स्टेट में काफ़ी काम कर चुके थे। तो वहाँ से बढ़ा, और जब वापस गुजरात में मुख्यमंत्री भेजने की बात आई, तो उस समय अडवाणी साहब और अरुण जी ने उस समय प्रधानमंत्री वाजपेयी साहब से कहा कि हमें भेजना चाहिए, गुजरात में कांग्रेस वाज लूजिंग ग्रिप जी, तो इट वाज स्लाइड ऑन द स्लाइड। तो और वाजपेयी साहब ने ये जो उनकी सलाह है उस पे उसको माना, और ये गए। और फिर हम जानते हैं उनके जाते ही कुछ मंथ्स में जो गुजरात का राइट्स का इशू हुआ, तो उस समय द होल वर्ल्ड turned against Prime Minister Narendra Modi ji at that time, including people within the BJP were gunning for him. But Arun ji stood by him like a rock. Right. And he defended him openly within the party and in public. And जब वो नेशनल एग्जीक्यूटिव गोवा में हो रही थी, तो उस समय बड़ा स्पेकुलेशन था कि मोदी साहब का रेजिग्नेशन वहाँ पे मांगा जाएगा, और मोदी साहब कहते हैं तैयार भी हो गए थे कि ठीक है देने के लिए। लेकिन अरुण जी फ्लू टू गुजरात, उन्होंने उनसे कहा कि जो हालांकि कोई मानते नहीं है कि नरेंद्र की जय है, बिकॉज अरुण जी ने उस समय प्रेस को कहा था मेरा तो एमपी हूँ वहाँ से गुजरात से, तो मैं तो अपने काम से गया हूँ, और वो भी गोवा रहे थे, मैं भी गोवा जा रहा था, तो हम साथ हो गए। लेकिन ये वहाँ पे स्ट्रेटजाइज हुआ कि आप रिजाइन नहीं करेंगे, बिकॉज द अंडर करंट इज विद यू, राइट। और वहाँ फिर जो हुआ गोवा में, बल्कि ओवरवेलमिंगली the demand for his resignation was rejected, and it was held that resolution was passed that he has not done anything wrong. He did his duties as a chief minister and as a leader of the government at that time, or resignation was rejected. Even there was no call for resignation. Right. There was, क्योंकि उस टाइम ये चर्चा में आता था कि वाजपेयी जी कह रहे थे आपको राजधर्म निभाना चाहिए। हाँ। और वो जो उससे पहले जब गए थे जी एक बारी, तो ये गोवा एग्जेक्टिव से पहले की बात है, तो वो कहा गया, और उसकी भी मैंने बहुत देर लिखा है मैंने, कि वो क्लिपिंग भी अरुण जो मोदी साहब की एक बायोग्राफी है जो उन्होंने खुद उस पे उन्होंने अपनी चर्चा की है, और उसमें लिखा गया है कि वो जो क्लिपिंग है वो बहुत डिस्टॉर्ट करके दिखाई गई उस टाइम पे मीडिया में, कि एक पोर्शन, पूरा पोर्शन नहीं दिखाया गया कि जिस तरह से उसको कलर करके किया गया, बट दैट्स अ डिफरेंट मैटर। लेकिन हम दोस्ती की बात कर रहे थे, तो वहां पर फिर उससे ऐसी घनिष्ठ हो गई वो मित्रता कि अरुण जी और मोदी। उसके बाद एक मैं आपको और बताऊंगा कि उसी दौरान अरुण जी ने एक इंटरव्यू दिया था यूएस एम्बेसी में कहीं पे, उसमें ये चर्चा भी होती थी कि उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया था यूएस ने मोदी जी का। तो उस समय एक चर्चा हुई थी, इंटरव्यू था, तो उसमें अरुण जी ने उस समय इंडिकेट किया था कि मोदी कुड बी द प्राइम मिनिस्टर, और वो तो तब तक जब कहीं नाम भी नहीं था, नाम भी नहीं था, बिल्कुल। तो उनके माइंड में उन्होंने देख लिया था कि ही हैज द पोटेंशियल टू नॉट जस्ट लीड द पार्टी बट ऑल्सो लीड द नेशन, एंड ही हैज द पल्स ऑफ द कंट्री, राइट। तो वहां से उन्होंने स्ट्रेटजी बनानी शुरू कर दी थी, और जो गुजरात में मोदी साहब ने फिर एक वाइब्रेंट गुजरात का दौर शुरू हुआ, एक इकोनॉमिक मॉडल शेप करना शुरू किया, मॉडल ऑफ गवर्नेंस शेप करना शुरू किया, उसमें अरुण जी के साथ बहुत डिस्कशन होता था,
और अरुण जी उसको एज ए लीडर ऑफ ऑपोजिशन 5 साल उन्होंने इसको पूरी तरह से वॉइस दिया पार्लियामेंट में। आप Right. देखें अगर डिबेट्स उठा करके उन्होंने गवर्नेंस की बात लगातार की, तो ही वाज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पोजीशनिंग हिम। पोजीशनिंग एंड देन ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि 2013 में उनका नाम पिच करने में उनका बट फ्रॉम बिहाइंड द सीन, तो जैसा आपने कहा कि वो ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो क्रेडिट लेने में या अपने को शो ऑफ करने में विश्वास रखते थे, कभी भी नहीं। और बहुत से डिसीजन जैसा आपने बताया बुक में, बहुत से लॉज वगैरह ड्राफ्ट करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो अब ड्राफ्ट पर आते हैं, जैसे कि आईबीसी की बात करें, क्योंकि आपका खुद का एक उसमें एक्सपर्टीज है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड मेरे विचार में एक बहुत बड़ा अनसंग रिफॉर्म रहा है मोदी गवर्नमेंट का, जिसमें अरुण जेटली जी ने एक अहम भूमिका निभाई। तो अगर एक लेमैन के पर्सपेक्टिव से देखें, क्या है आईबीसी, क्या उसका फायदा है भारतीय अर्थव्यवस्था को, और जेटली जी का योगदान क्या रहा बोथ एज ए लॉयर एज ए पॉलिटिशियन उसको लाने में? जी, तो अरुण जी इंसॉल्वेंसी लॉ की इम्पोर्टेंस एक इकोनॉमी में क्या होती है उसको समझते थे जी। तो जब वो वाजपेयी साहब के टाइम पे मंत्री थे, तो उनके टाइम पे ये नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल जो आज आईबीसी में आया, तब वो कंपनी सेकंड अमेंडमेंट एक्ट के दौरान ऑलरेडी टेबल हो चुका था जी। और वो कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज उसका सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था, पहले मद्रास हाई कोर्ट में, और वो तो ये उन्होंने फर्स्ट लेवल ऑफ रिफॉर्म, फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म उस समय ही कर दिया था। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन इंसॉल इंडिया भी बनाने में इनिशिएटिव लिया, तो मुझे जिम्मेवारी दी थी उस टाइम पे उसका, उस ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करने के लिए। तो ये सब्जेक्ट को तो जानते थे, और खुद एक कमर्शियल इकोनॉमिक लॉयर थे और इंसॉल्वेंसी को बड़ी अच्छी तरह से समझते थे। बहुत सारे केस में वो पेश हुए हैं, मेरे साथ, मेरे खिलाफ, जैसे भी है, औरों के साथ, तो इतने बड़े बड़े केसेस में। जब 2014 में वो फाइनेंस मिनिस्टर बने, तो उस समय भारत की बैंकिंग कंडीशन अच्छी नहीं थी जी। बैंक्स में एनपीएस का लेवल बहुत हाई था, और इसकी वजह से लेंडिंग ज़्यादा हो नहीं रही थी, और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउस हैं वो लोन लेकर के बैठे हुए थे, दे नहीं रहे थे। तो उस समय ये पहली बारी बात हुई कि जो रिफॉर्म्स चाहिए हैं इंडियन इकोनॉमी को टर्न अराउंड करने के लिए, क्योंकि वो सबसे बड़ा एजेंडा था, तो ये डिसाइड हुआ कि ये एक सबसे बड़ा रिफॉर्म है जो कि एक एक्टिविटी क्रिएट कर सकता है, जीडीपी को बढ़ा सकता है, और बैंक्स को अगर दोबारा लोन देना है, एंटरप्रेन्योरशिप एनकरेज करनी है, तो हमारे को बैंक्स की बैलेंस शीट को क्लीन करना पड़ेगा, और हमारे को एनपीएस को डाउन लाना पड़ेगा, और बैंक्स को ये कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि तुम लेंडिंग करनी शुरू करो। तो उसके लिए आईबीसी एक लो हैंगिंग फ्रूट था, और प्रधानमंत्री जी भी यूएस होके आए थे, और उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टर से जब बात करी तो उन्होंने भी ये कहा कि एक इंसॉल्वेंसी लॉ चाहिए है, और फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रैंकिंग में इंडिया को ऊपर जाना था, जिसमें हम इंसॉल्वेंसी में बहुत नीचे थे, तो वो भी एक ज़रूरी था कि हम इसको कैसे ऊपर लेकर के आए। तो आईबीसी को में अगर हम स्कोरिंग अच्छी कर देते हैं तो इंडिया की रैंकिंग ऊपर चली जाएगी। तो अरुण जी ने फिर ये बीएलआरसी कमेटी, बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म्स कमेटी सेटअप करी। टीके विश्वनाथन जो हैं वो ही एक थे गवर्नमेंट में जो इसको जानते थे, टीके विश्वनाथन, और हमने टीके विश्वनाथन सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव असेंबली रहे हैं, वो मेंबर लॉ कमीशन रहे हैं, और उनके साथ मैंने काफ़ी काम किया है उस टाइम पे। तो फिर ये कमेटी बनी और उस कमेटी ने ये किया, और उस समय उन्होंने बड़ा क्लियर फोकस दिया था कि मेरे को 1 साल के अंदर अंदर ये लॉ चाहिए, तो आप मुझे लॉ भी बना के दो। और उन्होंने मार्केट प्लेस को इकट्ठा किया और वन ऑफ द मोस्ट फॉरवर्ड लुकिंग लॉज लेकर के आए, और मुझे लगता है कि वो लॉ एक ऐसा है जो उनकी गाइडेंस से बना, जो ग्लोबल साउथ की बहुत सारी कंट्रीज हैं उसको अडॉप्ट कर सकती हैं। तो आई बिलीव दैट इट इज़ अरुण जेटलीज गिफ्ट टू द ग्लोबल साउथ, जो हमारा आईबीसी है, और ये वर्ल्ड आज से 10 साल बाद रियलाइज करेगा, क्योंकि अभी वो सिंक इन नहीं हो रहा है, और हम भी अभी उसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। बट मोर इम्पॉर्टेंटली, लॉ तो जैसे वो उनकी क्षमता थी इनेक्ट करके उन्होंने दे दिया, बट उन्होंने जो वो 3-4 साल में इम्प्लीमेंटेशन उसकी रोल आउट करी, वो हिस्टोरिकल है। हमने अपने पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को इम्प्लीमेंटेशन के जो है इतना पुअर रहा है, जी, हम लॉ बनाने में बहुत अच्छे हैं, इम्प्लीमेंट करने में पुअर हैं, बिल्कुल। बट ही शोड दैट वी आर इक्वली केपेबल ऑफ इम्प्लीमेंटिंग, राइट। और उन्होंने एक स्ट्रेटजी बना करके, मिशन बना करके 4 साल में बड़े इंस्टीट्यूशंस खड़े किए आईबीसी के,
रोल आउट किया, एक नई इंडस्ट्री ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनाई, और जब ज़रूरत पड़ी अमेंडमेंट करी, और जब ज़रूरत पड़ी रेगुलेशंस में अमेंडमेंट करवाई, और मार्केट में इतने अच्छे सिग्नल दिए अपनी स्पीचेस से कि इट बिकेम ऑलमोस्ट लाइक अ मूवमेंट। यस। और पहली बारी मैंने एक लॉ देखा जो कि जिसकी ओनरशिप हर स्टेक होल्डर ने ली, और उसको हमने सक्सेसफुल बनाया। उसमें अभी कुछ कमियां हैं जो हम उम्मीद करते हैं कि आगे जाके जल्द पूरी होंगी। लेकिन एक लॉ बनाना भारत में और साथ में इम्प्लीमेंट ढंग से कर पाना एक रेयरिटी है, क्योंकि अक्सर एक लेमैन के पर्सपेक्टिव से यही कहते हैं कि हमारे देश में कानून तो बहुत है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होते। बट मैं 3 ब्लू चिप रिफॉर्म्स मोदी जी के सरकार के जो क्रेडिट अरुण जी को देता हूँ, जीएसटी का उनको मिलता है। बिल्कुल। और जैसे आपने कहा कि आईबीसी थोड़ा अंडर प्ले होता है, उस तरह से नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए, बट मेरे हिसाब से ये 2 तो है ही हैं। बिल्कुल। पर तीसरा मेरे हिसाब से डिजिटल इकोनॉमी, जो आज हम ग्लोबल फ्लैग बेयरर्स हैं उसके, जिस तरह से आज आप कहीं पे खड़े होकर पेटीएम यूपीआई करते हैं, बिल्कुल, उसका भी मेरे हिसाब से अरुण जी का बहुत बड़ा योगदान है, और वो मैंने अपनी किताब में लिखा भी है। तो इसके साथ जब जीएसटी की बात करें, क्योंकि वो एक लैंडमार्क रिफॉर्म माना जाता है, तो उस टाइम क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, और जैसे जीएसटी के बारे में हम जानते हैं कि एक तो फिर से विद इन द आवर ओन गवर्नमेंट उनको चैलेंजेस थे, अलग अलग स्टेट्स में चाहे भाजपा की गवर्नमेंट थी, लेकिन बहुत से डिबेट्स चले, डिस्कशन चाहिए कि किस चीज़ पे क्या रेट होना चाहिए, और इन चीज़ों ने अननेसेसरी टाइम भी बहुत लिया। उसको आपके विचार में इस सारे जो एजेंडा था जीएसटी लाने का, उसको अरुण जेटली जी ने कैसे रेडी करा, कैसे उनका कंट्रीब्यूशन रहा उसको लाके सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने? अब ये तो उनका एक मिशन था, क्योंकि उनको पता था कि हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा जो हिंड्रेंस है बिजनेस करने का, चाहे वो इंडिया का एंटरप्रेन्योर है या बाहर से जो आता है, वो ये है कि उसको इतनी जगह डील करना पड़ता है टैक्सेशन के लिए। ठीक है, 10 तरह के टैक्सेस आप देखो तो सर्विस टैक्स है, ये टैक्स है, वो टैक्स है, ये टैक्स वो टैक्स, और जो स्टेट्स और सेंटर के अलग अलग टैक्स की वजह से नाके होते थे हर स्टेट में। आप एक स्टेट से दूसरे एंटर करते हैं और लंबी लंबी ट्रकों की लाइन लगी होती थी, जहां पर वो ये सब खड़े होकर के ऑटो पे करना पड़ता था, एक टैक्स पे करना पड़ता था। तो वो सब चीजों से उनको छुटकारा दिलाना था। जीएसटी पे वाजपेयी साहब के टाइम पे भी बहुत स्टडी हुआ था जी, और उसके बाद प्रणब मुखर्जी रहे, चिदम्बरम साहब रहे फाइनेंस में, तब भी बहुत काम होता रहा, लेकिन वो आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाए। इन्होंने डिटरमिन्ड थे कि मुझे ये करना है, तो उन्होंने पहले वाली जितना काम हो चुका था उसको अच्छा उन्होंने आगे ले जाने का सोचा। उन्होंने केलकर साहब, ये जितना भी लोग जिन्होंने इन्वॉल्व थे उनके साथ से फिर से चर्चा करी और एक उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई, और फिर सबसे बात करके जिस तरह से भी है लोकसभा में पास हुआ। लोकसभा में मेजॉरिटी थी तो इतना डिफिकल्ट नहीं था, डिफिकल्ट था राज्यसभा में, कि राज्यसभा में बीजेपी के पास मेजॉरिटी नहीं थी, तो बिना कांग्रेस के सपोर्ट के नहीं हो सकता। और उन्होंने फिर मोदी साहब को कहा कि मैं, और वेंकैया नायडू जी से कहा कि सोनिया गांधी जी से मिलते हैं, और आपको पता है उस समय टेंशन थी, बिटरनेस थी, सब कुछ है दोनों की, लेकिन अरुण जी इस मामले में पीछे नहीं हटते थे और उनकी कोई ईगो नहीं होती थी, और अरुण जी का एक अलग रिलेशन भी है, और उनके साथ इतने और सीनियर लीडर्स हैं जो कि सोनिया जी को कह सकते हैं कि अरुण जी मिलना चाहते हैं, शी वुड लिसन टू देम, चाहे वो आनंद शर्मा थे, चाहे चिदम्बरम साहब थे, तो मिले ये लोग। सोनिया जी ने कहा, राहुल गांधी भी मिले कि ये हमारे 3-4 इश्यूज हैं, उन्होंने कहा बात करते हैं, और फिर मैंने डिटेल में लिखा है कि कौन कौन कांग्रेस से नॉमिनेट हुए, और यहाँ और उन्होंने फिर स्ट्रैटेजी बनाई कि ये इश्यूज पे तो हम मान सकते हैं, इस पे नहीं मानेंगे, लेकिन उन्होंने कहा डिस्कशन शुरू करते हैं। तो स्टेट से डिस्कशन हुई, सब कुछ हुई, अल्टीमेटली कुछ कांग्रेस के डिमांड से उनके खुद के स्टेट्स ने एग्री नहीं करी कांग्रेस रूल से, और कुछ पे एग्री हुआ, तो 1-2 पे कंसीड कर लिया। तो अरुण जी ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात करी कि इस पे वी शुड स्टेप बैक, राइट, और ये 2 पे हम फर्म रहेंगे, और तो अल्टीमेटली राज्यसभा में भी ये अप्रूव हुआ। तो वो अप्रूव होना एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन अब उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि जो काउंसिल थी वो इतने स्टेट से फाइनेंस मिनिस्टर थे, जीएसटी काउंसिल, तो जीएसटी काउंसिल में तो मैंने बहुत डिटेल में लिखा है, शक्तिकांत दास की को भी मैंने कोट किया है, उन्होंने बाद में लिखा था कि किस तरह से अरुण जी ने वो मीटिंग्स करी जी, वो तो मैजिकल है। बिल्कुल, वो कहते हैं कि मैं रात को 12 बजे 1 बजे तक आप जो भी इश्यूज है लेकर के आओ, बैठेंगे, लेकिन करके उठेंगे। बिल्कुल, कंसेंसस बिल्ड किया,
आज भी वो कंसेंसस बिल्ड करना मुश्किल होता है बिल्कुल और बहुत चीजें डिले हो जाती हैं, बट ही वाज अ मास्टर एट बिल्डिंग कंसेंसस एंड आई थिंक दैट्स हिस्टोरिकल. He will go down in history, obviously known more for GST, largely because it was very complex. यस But IBC too, I think, in my view, is one of the reforms that the world will recognize a little later in time when Indian IBC becomes a global product. बिल्कुल. तो यहाँ पर मेरा एक सवाल था कि जैसा हमने कहा कि जेटली जी एक बहुत अच्छी इमेज वाले एक रिस्पेक्टेबल पॉलिटिशियन रहे, लेकिन जैसा कि आपकी बुक में तो आपने काफ़ी डिटेल में स्टडी करा है, लेकिन आमतौर एक आम जनता जो है वो बहुत सी बातें नहीं समझती रिलेटेड टू लॉज, चाहे आईबीसी व जीएसटी. इन अ वे कैन वी से दैट अरुण जेटली जी वाज एन अनसंग हीरो? कि क्या उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को देश ने सही से समझा है? उनकी इज्जत है, नो डाउट, बिल्कुल डिजर्व करते हैं, लेकिन क्या उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को देश ने सही से समझा? मैं ये बिलीव करता हूँ कि उसकी वजह अरुण जी खुद हैं, क्योंकि वो एक बहुत ड्रिवनली एम्बिशियस पॉलिटिशियन नहीं थे जी. उनका ये कोई गोल नहीं था कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है या मुझे वित्त मंत्री बनना है. वो कभी उस टाइप ही नहीं, बिकॉज आई थिंक वो बड़े डिसिप्लिन रहते, ही वाज अ वेरी अकम्प्लिश्ड सक्सेसफुल लॉयर प्रोफेशनल, तो इनसिक्योर नहीं थे. राइट. और उनको ये पता था कि मेरी इसलिए इज्जत है जिस तरह से मैं हूँ, और मुझे कुछ और बनने के लिए वो इज्जत लूज करने की जरूरत नहीं. राइट. तो उनका आप कह सकते हैं, आई मीन आई बिलीव दैट ही वाज द प्राइम मिनिस्टर दैट कंट्री नेवर हैड. बिल्कुल. और वो खुद उन्होंने गिव अप किया बिकॉज वो खुद उस तरह से ड्रिवन नहीं थे. बट माई व्यू ही इज अनसंग फॉर हिमसेल्फ perhaps to a degree, but he would always be a sung hero for BJP and for Prime Minister Modi, and also to a large extent for Home Minister Amit Shah ji, because they both know how much contribution he has in the party, in the nation building, in the achievements of BJP in the first 5 years in particular of their governance, and also in the making of many political leaders of today who are at the forefront of shaping the vision for a Viksit Bharat. बिल्कुल. Including, if I may say, the Honorable Prime Minister himself. बिल्कुल. तो यहाँ पर एक बात जो आती है जेटली जी को लेकर, वो आता है डीमोनेटाइजेशन. तो डीमोनेटाइजेशन ऐसा फैसला रहा जिसपे गवर्नमेंट का काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ, और ये भी कहा जाता है विद हाइंडसाइट अगर हम देखें कि शायद डीमोनेटाइजेशन ने वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं करे जो पहले प्लान था, क्योंकि ब्लैक मनी फिर से वापस है इकोनॉमी में, कैश ट्रांजैक्शंस भी होती हैं. और उस टाइम आपको क्या लगता है कि वो फैसला, उसके साथ साथ अरुण जेटली जी ने एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि बहुत समय लगते एटीएम में लाइन्स थी, लोग से प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, वो पर्टिकुलर फैसला जिसपे बहुत मिक्स्ड रिव्यूज हैं लोगों के, वो पर्टिकुलर डिसीजन उन्होंने कैसे हैंडल करा अपने कार्यकाल में? देखिए, ये आपकी बात ठीक है कि डिमोनेटाइजेशन का जो एक फैसला है वो इतना बड़ा फैसला था कि इट हैड टू शेक द अर्थ अंडर यू. राइट. इट वाज नॉट अ स्मॉल डिसीजन. तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस तो होने थे. बिल्कुल. और उसकी कोलेटरल डैमेज भी होनी थी. द फैक्ट कि आज भी हम इसको डिस्कस करते हैं कि उसका क्या आउटकम उतना था ऑप्टिमली जितना चाहते थे या जितना प्लान किया था. तो ये आई थिंक एवरीबडी न्यू कि इट इज नॉट गोइंग टू बी अ केक वॉक. राइट. सो द फैक्ट दैट इट क्रिएटेड दैट काइंड ऑफ chaos at that point of time and debate over its correctness of the decision, everything is, I think, was quite expected. Nobody is surprised that it is that way. But there are also equal defenders of demonetization in terms of the purpose it has served. I feel that one biggest thing which Arunji did, besides managing the immediate aftermath of the decision in making the cash available, deposit of the old cash, ensuring liquidity in the market, because after a lot of activity in India takes place is a cash-driven economy, legitimately. That, of course, we all know, and I don't want to talk too much about it because the book says a lot. But what people don't realize, and I think people don't give him enough credit for, and he did not live enough
long enough to take credit for that, is, or he may not have taken credit himself, but articulate in some way, कि उसको उन्होंने इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कैसे क्रिएट किया. लोग कहते हैं गोल पोस्ट शिफ्ट किया जी. कि आपने कहना शुरू कर दिया है कि हम जो टेररिज्म के लिए मनी है वो उसको करने के लिए किया, या फिर बाद में डिजिटल इकोनॉमी के लिए उनका नैरेटिव बनना शुरू किया था कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर डिजिटल इकोनॉमी. द फैक्ट इज दैट ही used this crisis to create the new era of digitized world in India, digital economy, which people around the world are in awe with. Right. कि ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर कहीं सब्जी लेने, फ्रूट लेने जाते हैं और वो देखते हैं कि एक आम आदमी वहां पर कैश निकाल ही नहीं रहा है, वॉलेट कैरी नहीं कर रहा है. आपका सब कुछ फोन पे है, आपका वॉलेट भी वहीं पे, आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी वहीं है, आपका क्रेडिट कार्ड भी वहीं है, आपका कैश बैंक अकाउंट भी वहीं है. आप वहीं पे स्कैन करके 1 मिनट में पेमेंट कर देते हैं. एक छोटा सा वेंडर किसी भी शहर में है से लेकर के गोल्ड ज्वेलर जो सेल कर रहा है वो भी आज पेटीएम से पैसे ले रहा है. बिल्कुल. आपकी जो ट्रांजैक्शन है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में 30 सेकंड्स में हो जाती है. जिस दिन के लिए आपको एक प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन करने के लिए आप ड्राफ्ट लेके जाते थे, वो 2 दिन वेट करता था, ड्राफ्ट कैश होगा. आज आप स्टैंप ड्यूटी 15 मिनट में पे करते हैं, उसकी आप सारा पेमेंट वहीं करते हैं, आप 2 घंटे में ट्रांजैक्शन कर लेते हैं. बिल्कुल. दैट वर्ल्ड हैज नॉट रियलाइज्ड इज द one of the most significant contributions of Arunji to give that impetus to that world. Digitization. बिल्कुल. And he put the world on the back foot. हमारे खुद के क्रेडिट कार्ड आने शुरू हुए और सब कुछ है. In fact, it's on record कि how the Visa and the Mastercards of the world complained to the US president, and the US president then spoke to India that is hurting their world because India has created their own digital system. Yes, very true. तो एक जो और सवाल है वो है अरुण जेटली जी के एज अ पर्सन. ये हमने बात करी एज अ लॉयर, एज अ पॉलिटिशियन. आपने अरुण जेटली एज अ पर्सन कैसे थे काफी डिटेल में लिखा है. एक बहुत बड़े फूडी थे, सोशलाइट थे, बहुत बड़े फूडी थे. और मुझे याद है मोदी जी ने एक पॉडकास्ट में ये कहा भी था कि क्योंकि वो जेटली जी के साथ बहुत यात्रा करी थी, कहते मुझे को ये हैरानी होती थी कि हम जहां भी जाते थे भारत में उनको हर जगह के बेस्ट रेस्टोरेंट पता, बेस्ट खाना सब जगह. मैं हैरान होता था कि हर जगह के बारे में किसी को कैसे पता हो सकता है. तो एक ये उनका पर्सनैलिटी एस्पेक्ट था. इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सा सोशल वर्क करा था, बहुत से लोगों की मदद करी थी, जो उन्होंने अगेन जैसा आपने कभी उन्होंने हाईलाइट नहीं करा कि उन्होंने कितने लोगों की मदद करी, चाहे उनके स्टाफ के लोग हों या कोई और भी किसी की हेल्प करना. तो इसके बारे में कुछ बताइए. हाउ वाज ही एज अ पर्सन? There are very few people I have come across in life who are so kind-hearted, who are very spontaneous, who are very genuinely very warm and willing to help. There was no pretense. Right. और मैं तो खुद उसका जो है बेनिफिशियरी हूँ. मैं आपको बताता हूँ कि एक छोटी सी एपिसोड है. मैं कोर्ट में आर्ग्यू कर रहा था. मैं अभी आया था चंडीगढ़ से, यंग लॉयर, 24 साल का, 25 साल का, और बहुत हाई स्टेक मैटर आर्ग्यू कर रहा था. मैं विद्या स्टोक्स स्पीकर वक्त थी लोकसभा विधानसभा हिमाचल प्रदेश की, कांग्रेस की जी. और उनकी मिसेस अमृता बोस करके सेक्रेटरी हुआ करती थी ऑल इंडिया हॉकी एसोसिएशन की, और ये ऑल इंडिया हॉकी एसोसिएशन की प्रेसिडेंट थी विद्या स्टोक्स. तो उनका आपस में इन दोनों के ग्रुप का किसी और ग्रुप के साथ इशू था. वो एक EGM कॉल करे थे जिसमें ये हटाना चाहते थे. तो दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका डाली थी और विद्या स्टोक्स जी ने मुझे एज ए लॉयर हायर किया और मैं आर्ग्यू किया. 45 मिनट आर्ग्यू किया एक जज साहब के साथ सामने. तो और मैंने रिलीफ ले लिया, स्टे करा दी. और अरुण जी पीछे बैठे थे, सुन रहे थे. और जब मैं निकल के आया बाहर तो वो मेरे पीछे आए और उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई, कहते वेल डन बत्रा. फिर उन्होंने देखा कि ये इसने मेरा पेन निकाला जॉब से. कहते क्या यार तू इतना कमाता है, क्या 2 रुपये का पेन रखा हुआ है तूने? अच्छा पेन रखा कर. उन्होंने अपनी जेब से मोबला निकाल करके, मोबला का एक अच्छा महंगा पेन उस टाइम पे तो इंडिया में कुछ ऐसे आजकल तो कई जगह मिल जाता है, लेकिन उस समय तो अब्रॉड से आता था, बॉम्बे में, या बॉम्बे से कहीं से हम खरीदते थे. उन्होंने मेरे पॉकेट में डाल दिया. और इंसोल इंडिया एसोसिएशन का मैंने पीछे जिक्र किया आपके एक सवाल के जवाब में, उसकी जिम्मेवारी मुझे दी. वो भी ऐसे ही, मैं एक दिन उनके किसी ब्रीफ करने गया था मैटर में. उसके बाद जब मीटिंग खत्म हो गया तो उन्होंने कहा कि बत्रा एक नई एसोसिएशन बना रहे हैं तो जिम्मेवारी लेगा. मैंने कहा जरूर. और बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स ने कहा कि नहीं ये जिम्मेवारी हमें दो, और अरुण जी का नहीं, यंग लड़का है इसको करने दो. ऐसे हजारों
किस्से हैं. Everyone has a अरुण जेटली स्टोरी टू टेल. बिल्कुल. कि हमारे साथ हमने देखा है कैसे है जेन्युइन. और आज भी उनको गए 2019 से आज आप देख रहे हैं 6-7 साल हो गए हैं, 6 जी. साल होने वाले हैं. पर आज भी उनको लोग उतनी ही नम्रता, उतने ही प्यार से, उतनी ही इज्जत से याद करते हैं, क्योंकि ही टच्ड लाइव्स ऑफ सो मेनी पीपल. छोटे से लेकर के बड़े तक. सिर्फ पैसे देने की बात नहीं है, आउट द वे जा करके हेल्प करना. कोई गया 1 मिनट फ़ोन उठाना और बात कर लेना. ये नहीं कि हाँ मैं कह दूंगा कर दूंगा. He was not a politician. He was not a politician by grain. है ना, ही वॉज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग. एंड बिकॉज क्योंकि उन्होंने जिंदगी बड़ी स्ट्रगल से देखी थी, जी. तो उनको पता था कि स्ट्रगल क्या चीज़ होती है, तो वो स्ट्रगल को समझते थे, इसलिए वो हेल्पफुल. तो मैं अपने फादर में भी ये देखता था कि वो इतने सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर है, सेक्रेटरी जनरल, लोकसभा अफिशिएट किया उन्होंने. उन्होंने भी, उनके पास कोई आ गया कभी मदद करने से डरते थे. तो मैं कई बार सोचता हूँ कि जो लोग उस माहौल में पैदा हुए, बड़े हुए, उन्होंने स्ट्रगल देखी, वो दूसरे की मदद करने से पीछे हटते नहीं. बिल्कुल जी. तो आखिरी सवाल जो जेटली जी को लेकर है वो ये है कि दुर्भाग्यवश अब आज हमारे बीच में नहीं है, और पुअर हेल्थ की वजह से उन्होंने अपना करियर, पहले ही उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा और बाद में हम देखते हैं कि वो बीमारी की वजह से वो नहीं रहे. अगर वो रहते, आपको क्या लगता है क्या और बड़े रिफॉर्म्स या नेशन पे उनका क्या और कंट्रीब्यूशन रहता फॉर 5-10 ईयर्स? मुझे लगता है 3 चीज़ें. नंबर 1, कि आज आईबीसी का जो क्रिटिसिज्म हो रहा है कि वो उस तरह से रिजल्ट उसके नहीं आ रहे हैं जो आने चाहिए थे. मुझे लगता है कि वो जो बाद के 5 साल आईबीसी के हैं वो बेहतर होते हैं जी. जो वो कर सकते थे. दूसरा, मुझे लगता है कि जुडिशल रिफॉर्म्स को लेकर के कि डिलेज होती हैं. ये मैं जानता हूँ कि 2019 में इलेक्शन से पहले ये स्ट्रेटजी बन गई थी. कुछ तरह से जुड़ा भी था कि आने के बाद, जीतने के बाद ये एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होगी. जी. और उसके लिए एक कमेटी भी आइडेंटिफाई हो गई थी. मैं यहाँ पर उसके विस्तार में बताना उचित नहीं समझता, मगर अरुण जी रेडी थे उसके लिए कि जुडिशल रिफॉर्म. और उसका ऑब्जेक्टिव था इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज उसमें इंडिया आज भी बहुत पीछे 160 नंबर पे आते हैं. तो उसको कैसे ऊपर लेकर के जाएं, वो उनका गोल था. तो शायद हम एक रिवोल्यूशनरी चेंज देखते और वो ला सकते थे, बिकॉज जुडिशरी में जो उनकी रिस्पेक्ट थी और एग्जेक्टिव में तो थी ही, वो एक ऐसे जिसे कहते हैं ब्रिज थे जो who could have walked, make people walk from across their end to the other end. तीसरा, मुझे लगता है कि जो पॉलिटिक्स में थोड़ी बिटरनेस आई है जी. और आज हम बात करते हैं कि सिविलिटी का एक एब्सेंस है. मुझे लगता है डिबेट की जो क्वालिटी जो अब देखने को नहीं मिलती है, वो अरुण जी होते तो शायद डिफरेंट होता. बिल्कुल. कि एक सिविलिटी होती, रिलेशन ऑपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस के थोड़े बेटर होते, और एनवायरनमेंट थोड़ा पॉलिटिकल मुझे लगता है कि शायद बेटर होता. तो ये 3 चीज़ें मुझे लगता है कि अरुण जी वुड हैव बीन वेरी सिग्निफिकेंटली लीडिंग. बिल्कुल. आई थिंक अगर किसी से भी पूछे तो उनके जवाब बिल्कुल ये पॉजिटिव ही रहेंगे इसी तरह की. अगर वो होते तो शायद कुछ चीज़ें और बेहतर होती. जी. आपने बहुत एक डिटेल्ड बुक लिखी है. मैं ये जानना चाहता था कि कितना टाइम आपको लगा, और एक एज अ बायोग्राफर एक डिस्पैशनेट होके जैसे आपने बुक लिखी है, वो कितना मुश्किल रहा आपके लिए कि डिस्पैशनेट बेसिस पे लिखना? तो अरुण जी में रिसर्च तो अबाउट लगभग 7-8-9 महीने की रही. और अरुण जी को थोड़ा जानता भी था, क्योंकि उनके साथ उनकी कुछ रिफॉर्म्स से जुड़ा भी हुआ था, उनका एज लॉयर भी जानता था. तो एक इंसाइट, इट वाज नॉट अ न्यू सब्जेक्ट, ही वाज नॉट अ न्यू सब्जेक्ट, राइट. और रिसर्च करने से पहले भी एक साल वो मेरे जहन में थे. जी. मैं रिसर्च नहीं कर रहा था, लेकिन फॉर्मुलेट कर रहा था उनको एज अ सब्जेक्ट ऑफ माय बायोग्राफी. और जब लिखनी शुरू करी तो सबसे 3 चैलेंजेस थे. जी. मैंने उसका जिक्र किया भी था बुक जब लॉन्च हुई, कि पहला ये कि आप
इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनके बारे में लिखने में, क्योंकि ना सच अ टावरिंग पर्सनैलिटी, जिनको और बहुत लोग इतने करीब से जानते हैं, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, और बड़े बड़े टॉल पॉलिटिशियंस, उनके करीबी दोस्त जो इतने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्ड करते हैं, अभी भी कुछ होल्ड कर रहे हैं हम। तो आप उनके बारे में लिखने जा रहे हो जो उनकी इंसाइट और भी ज़्यादा है, तो आई शुड बी केयरफुल इन माई रिसर्च, इन माई व्हाट आई राइट एंड व्हाट आई डोंट राइट। तो एक उसका थोड़ा बर्डन था जो मैं नॉर्मली महसूस नहीं करता हूँ किताब लिखने में। दूसरा बर्डन था कि ऐसी पर्सनालिटी पे तो अब 10 किताबें कम होंगी। बिल्कुल। और एक किताब लिखो और उसमें या तो मैं एज ए लॉयर लिखता या पॉलिटिशियन लिखता या सिर्फ उनको एज ए पर्सन लिखता, क्या लिखता। फिर मैंने कहा कि वो सेटिस्फाई नहीं कर रही थी मुझे। मैंने कहा उनकी ज़िंदगी के बारे में लिखना है, चलो थोड़ा सा फास्ट लिखते हैं कि बहुत इस let's give it a flavor to the world. Let's just be a starting point for people to write more about it. और तो निकली तो 1000-1200 पेज किया, तो लेकिन फिर पब्लिशर कहने लगा कि इतनी मोटी हो जाएगी तो कोई खरीदेगा नहीं, लोग ट्रैवलर नहीं खरीदेंगे क्योंकि हैवी है। और फिर अल्टीमेटली 750 पेज के करीब आई, तो फिर भी हैवी हो रही थी, तो पब्लिशर ने इम्पोर्टेड पेपर मंगाया बेल्जियम कि हल्का पेपर हो, महंगा हो, लेकिन थोड़े सा हल्की हो जाएगी किताब। और आप देखेंगे इस साइज की और किताबों के मुकाबले में बहुत हल्की है किताब। तो वो एक सेकंड इशू था। और आई थिंक थर्ड इशू जो मुझे लगा कि अरुण जी की जो किताब है वो फैमिली की ब्लेसिंग्स के बिना नहीं हो सकती है। तो मैंने फिर ऑब्वियसली किताब शुरू करने से पहले संगीता जी से, जेटली जी से बात करी, जो वाइफ ऑफ लेट अरुण जी। उन्होंने इनकरेज किया। फिर मैंने उससे लगभग 8-9 महीने कोई बात नहीं करी। फिर जब मोरलेस कंप्लीट होगी फिर उनको बताया, तो फिर वो सोच में पड़ी कि ये लिख रहे हैं अब अरुण जी के बारे में। तो उन्होंने कहा कि लिखे, फिर आप दीजिए पूरी। तो फिर मैंने पूरी लिख के दी और उन्होंने पढ़ी। और जो सबसे मुझे लगता है कि 3 जो इन चैलेंजेस के अलावा एक लास्ट था जिसका आपने वर्ड भी यूज़ किया कि हाउ डू यू स्टे dispassionate about the person who you feel so passionate about, right? Because you admire him so much, yes, as a person, as a leader, as a lawyer, as someone generally a great politician that the country does not have anymore. How do you write about him dispassionately? जी, Because मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं पॉलिटिकल ऑब्जर्वर नहीं हूँ, मेरे को पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है, मैं I'm a lawyer, and so there I have to maintain complete objectivity. right. तो उसमें थोड़ा सा होता है। बिल्कुल जी। तो चलिए हम इस उम्मीद के साथ ये पॉडकास्ट खत्म करते हैं कि हालांकि जेटली जी की जगह तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन भारतीय राजनीति में ऐसे अच्छे और चेहरे आए जो लोगों में एक विश्वास जगाएं देश के प्रति, समाज के प्रति, और देश का जो सही मायने में अपने काम से भला करें। जी, और अगर आप कहें मुझे 30 सेकंड और दें, तो मैं ये फील करता हूँ कि यंग लॉयर्स, यंग पॉलिटिशियंस, और जो इस कंट्री के फ्यूचर में बिलीव करते हैं, और आई बिलीव कि हमारी 1.6 बिलियन पीपल कंट्री बिलीव करती है, उस किताब को पढ़ना चाहिए ताकि आप इंस्पायर हों कि पॉलिटिक्स अच्छी भी हो सकती है। बिल्कुल, पॉलिटिशियन अच्छे हैं, लॉयर्स, जितनी करियर में आप जाना चाहते हैं, यू विल बी इंस्पायर्ड दैट अ मैन लाइक हिम वंस लिव्ड एंड वॉक्ड द अर्थ ऑफ इंडिया। एब्सोल्युटली। तो जो लोग देख रहे हैं, आई थिंक जो बुक है दोस्तों, एक बहुत फिटिंग ट्रिब्यूट है टू अरुण जेटली जी। और ना सिर्फ एक फिटिंग ट्रिब्यूट है, ये एक तरह से बुक भारत की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बताती है, पोस्ट इंडिपेंडेंस। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ी हैं, बट इसमें बहुत सी ऐसी बातें थी जो मेरे को भी नहीं पता थी। तो यदि आप जानना चाहते हैं अरुण जेटली जी के बारे में, भाजपा के बारे में, भारत के पॉलिटिकल हिस्ट्री सिंस इंडिपेंडेंस, दिस इज द बुक यू शुड बी रीडिंग। सुमन जी, आपने किताबी बातों के लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से बात करने के लिए। थैंक यू।